पर डेफिनेटली श्योरली जो डैमेजेस हो रही हैं वो प्योरली मैन मेड ही हैं। तिन्ने रिवर के उत्ते डैम बना ले जी। अल्टीमेटली इस सभी बातों को सर संदीप जी भुगत तो जनता रही है। डेफिनेटली कहीं ना कहीं कमियां तो हैं। ये एक प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी है कि जी पंजाब का नुकसान करना है, पंजाब को डुबोना है। सेंटर का कोई रोल नहीं है। संदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने और जो पहली हमारी बातचीत हुई उसमें डैम्स के बारे में काफ़ी विस्तार पूर्वक बताया, और सेकंडली मैंने भी कुछ बातें सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जो आपने बातें बताई मैंने भी कभी किसी न्यूज़पेपर या उसमें नहीं पढ़ी थी, और ये बड़ी एक ज्ञानवर्धक और आँख खोलने वाली बातें हैं कि अगर 10,000 करोड़ रुपया लगा दिया जाए, हमारा पानी भी पाकिस्तान में जाने से बच सकता है और फ्लड्स को निजात मिल सकती है। जैसे मैं सुनने में आ रहा है कि अब तो पता नहीं 10,000 करोड़ से कितने ज़्यादा हज़ार करोड़ का हमारा पंजाब में अकेले में नुकसान हुआ है। अब संदीप जी मैं बात करूँगा डैम्स के बाद, पानी डैम के बाद हमारी रिवर्स में आता है, और रिवर्स में अब एक बड़ा कंट्रोवर्शियल मुद्दा है। एक तरफ तो हम कहते हैं कि रिवर्स में सिल्टिंग हुई पड़ी है, सरकारें डी सिल्टिंग नहीं करती। दूसरा मुद्दा आता है कि जी हमारी लीगल या इलीगल माइनिंग ज़्यादा हो जा रही है, तो इसमें जनता बड़ी कंफ्यूज है। जैसे अभी उन्होंने कह दिया जी अपना खेत अपनी रेत, ठीक है, अब वो कहते हैं कहीं से भी डी सिल्टिंग कर लो। ये थोड़ा सा हमारे लोगों को एक आम लैंग्वेज में बताइए कि क्या डी सिल्टिंग ऑफ रिवर्स एक मुद्दा है, डी सिल्टिंग की ज़रूरत है, और जो दूसरी बात आती है कि हमारे माइनिंग जो है इलीगल, ये दोनों का फ्लड्स के साथ क्या रिलेशन है? देखो ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦਾ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਲਟਿੰਗ ਨਾਲ, ਜੀ, ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਫਲੱਡਸ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫਲੱਡ ਪਲੇਨਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਆ ਰਿਵਰਸ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਵਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਲੈਣ ਆਪਣੇ ਮੈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਡੈਪਥ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਡਿਸਚਾਰਜ ਦੀ ਰੀਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ 88 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਨਰੇਬਲ ਐਕਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ 6 ਲੱਖ ਕਿਊਸਿਕ ਦਾ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੈ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਤੋਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟ ਐਂਡ ਪਾਰਸਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਰੀਅਲ ਅਸੈਸ ਕਰਨੇ ਹੀ ਚਾਹੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸ ਕਿਸ ਕੰਟਰੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਚਾਰਜ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਗੈਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਗੇਜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਵਰਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਗੇਟਸ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੇਬਲ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਸ ਚੈੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੇਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਲੱਡਸ ਆਏ ਨੇ 26, 27, 28, 29 ਨੂੰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਗੇਟ ਕਿੰਨੇ ਓਪਨ ਸੀਗੇ, ਸਾਰਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਮਾਧੋਪੁਰ ਦੇ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ 'ਤੇ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟਰਕਚਰਸ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੀਅਸੈਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਔਰ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਬੜਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਮੈਜਰਸ ਲੈਣ ਲਈ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਵਰ ਦੀ ਡੀ ਸਿਲਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਇਫੈਕਟਿਵ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਮੈਜਰਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਟੇਕਅਪ ਕਰਕੇ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਫਾਈਨਲ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸਟਰ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਬੜੇ ਰਿਨਾਊਂਡ ਰਿਟਾਇਰਡ IAS ਅਫਸਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਦੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 'ਚ ਇਹ ਫਲੱਡਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਵਰਸ ਨੂੰ ਚੋਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਰਿਵਰਸ ਨੇ ਉਹ ਸਿਲਟਡ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਤਰਫ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਸਰ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜੀ,
ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਐਕਸਪਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਨੀਚੇ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਰੇਟਰ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬੜੀ ਅਨਕੰਟਰੋਲਡ ਤੇ ਅਨਪਲੈਨਡ ਤੇ ਐਕਸੈਸਿਵ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਿਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਜੀਮ ਹੈ ਰਿਵਰ ਦੀ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਪੋਰਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਰ ਦਾ ਫਲੋ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਬੜਾ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੈਂਕਸ ਤੇ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਰੋਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫਲੱਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਤੋੜ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੋੜ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਉਹ ਆਫੀਸਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਜਰ ਥਰਸਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਵਿਦ ਦੀ ਪੈਸੇਜ ਆਫ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਵਰਸ ਨੇ ਉਹ ਫਲੈਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਪੈਸਿਟੀ ਘਟ ਗਈ, ਕਪੈਸਿਟੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਮਾਈਂਡ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਫਟਰ ਦੀ ਫਲੱਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਿਵਰ ਦੀ ਰਜੀਮ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲ ਰਜੀਮ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਰਿਵਰਸ ਦੇ ਫਲੋ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਰਿਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੈਮ ਬਣਾ ਲਏ ਜੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਤੇ ਡੈਮ ਬਣਾ ਲਏ, ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਸਿਲਟ ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿਲਟ ਫ੍ਰੀ ਪਾਣੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰਿਵਰ ਦੀ ਇੱਕ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਿਲਟ ਕੈਰਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਕੈਰੀ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਲਟ ਫ੍ਰੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਫਲੱਡ ਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਿਲਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਤੇ ਰਿਵਰ ਨੂੰ ਸਕਾਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਕਾਵਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨੀਚੇ ਹੈਡਵਰਕਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਸਟਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਰਜੀਮ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਧੋਪੁਰ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਹੈਡਵਰਕਸ ਦੇ ਗੇਟ ਪੂਰੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਫਲੱਡਸ ਨੂੰ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਤੇ ਕੈਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਨਤੀਜਾ ਸਰ ਮੈਂ ਅਗਰ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਸਮਝ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਓਵਰ ਐਂਡ ਅਬਵ ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਸਿਲਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫਲੱਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨੈਚੁਰਲ ਬੈੱਡ ਦੀ ਰਜੀਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ CSMRS ਪੁਣੇ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ ਜੀ, IIT ਰੋਪੜ ਹੈ, IIT ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਡਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਰਜੀਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਥਰੂਆਊਟ ਰਜੀਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਮੈਪਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਮਾਡਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਲੈਂਕਲੀ ਕਿ ਜੀ ਸਿਲਟ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਅਨਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਵੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ नहीं करना चाहिए। दूसरा एक मुद्दा संदीप जी, जो क्योंकि हमारा जो ये आज की डिस्कशन है इसके हमने ये बात कर रहे हैं कि मैन मेड आपदा कि ह्यूमन की कौन कौन सी गलतियां या लापरवाहियां रही हैं जिनकी वजह से ये फ्लड आते हैं। उसमें एक रिसेंटली हिंदुस्तान टाइम्स में सुरेश कुमार जी हमारे रिटायर्ड IAS अफसर हैं, उन्होंने आर्टिकल दिया पंजाब फ्लड ए नेशनल चैलेंज बियॉन्ड पॉलिटिक्स, और उसमें उन्होंने लिखा एक बात उन्होंने मेंशन करी है रिगार्डिंग डिसअपीयरिंग ऑफ ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज़, ब्लॉकेड ऑफ फ्लड स्केप्स एंड एनक्रोचमेंट्स इन फ्लड प्लेन्स। तो वो ये कहते हैं कि इसका भी काफ़ी सारा असर हुआ है। तो ये जो एनक्रोचमेंट्स हैं या दरिया के अंदर वीड्स उग जाती हैं, जहाँ जो उन्होंने ये कहा कि ये ब्लॉकेज ऑफ फ्लड स्केप्स, तो इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है कि ये फ्लड्स जो आते हैं इसमें कितना इनका हिस्सा है, कितना रोल अदा करती हैं अदर एनक्रोचमेंट्स एंड ब्लॉकेड ऑफ स्केप्स? सर जी, अगर हम हिस्ट्री देखें तो पंजाब में जो हमारी लोकल ड्रेन्स होती थी या कोई पॉन्ड्स थे, 15,000 के करीब पॉन्ड्स थे, उसमें 90% सिल्टअप हो चुके हैं। जो इवन लोकल ड्रेन्स थी, जैसे हमारी बॉडी में आर्टरीज होती हैं जी, डिफरेंट आर्टरीज से मेन आर्टरी में फ्लड जाता है जी। तो जो छोटी छोटी आर्टरीज थी जो हमारे पंजाब की जो ड्रेन्स थी वो उनको तो हमने, हमारा इरिगेशन डिपार्टमेंट भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है, हमने उसको डीसिल्ट नहीं किया। अगर किसी ने
सिल्ट अप होने के बाद इंक्रोच किया है तो उसको उन्होंने क्लियर नहीं करवाया। तो क्योंकि एक्ट जो है, जो नॉर्दर्न इंडिया कनाल एंड ड्रेनेज एक्ट है, वो एम्पावर करता है चीफ ने ड्रेनेज कनाल जो एक्शन ड्रेनेज को कि वो इंक्रोचमेंट को रिमूव करा सकता है। अब वहाँ पर इंक्रोचमेंट हो गई, डेवलपर्स आ गए, बिल्डर्स आ गए जी, उन्होंने अपनी कॉलोनीज बना ली। तो जो माइनर ड्रेन्स थी वो सारी इंक्रोच्ड अपॉन है जी। पॉन्ड्स भी 90% इंक्रोच्ड अपॉन है। अभी जो सॉइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट है उनको मेजर उसमें एक्शन लेने की ज़रूरत है, सारे पॉन्ड्स रिवाइव करें, और इरिगेशन डिपार्टमेंट को भी सारी और ड्रेन्स को आइडेंटिफाई करें, उनको रिस्टोर करें, जहाँ इंक्रोचमेंट हुई है उसको रिमूव करें। उसमें मैं एक और ऐड करना चाहूँगा, जब मैं रंजीत सागर डैम पे था तो हमारे रिवर में कुछ कॉलोनी की मशरूमिंग हुई थी जब मैंने ज्वाइन किया। तो मैंने पूछा जब उनसे कि ये कैसे हो गई, कहते सर हमें नहीं मालूम। तो मैंने पीएचसीबी को एक लेटर लिखा कि आपने इनको कनेक्शन कैसे दे दिया। कहते जी नहीं, हम तो जो अप्लाई करता है हम उसको कनेक्शन दे देते हैं। वो तो झुग्गी वालों को भी दे देते हैं। तो इसमें सरकार को एटलीस्ट उनसे टेकअप करना चाहिए, एक पॉलिसी बनानी चाहिए। अगर आप फ्लड प्लेन्स में कोई आप कनेक्शन दे रहे हैं, कोई गलत इलीगल करता है तो उसको कनेक्शन ना दिया जाए विदाउट टेकिंग एनओसी फ्रॉम द इरिगेशन। ये बिल्कुल ठीक, आपने जो आर्टरीज वाली एग्जांपल दी ना, ये मेरे को बहुत अच्छी लगी। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो हमारे फ्लड प्लेन्स हैं या रिवर के बेड्स हैं उसके अंदर एनक्रोचमेंट्स हुई हैं जी। और बट नेचुरल अगर वो एनक्रोचमेंट्स होंगी तो उतना उनका एरिया घट हो जाएगा और फ्लड्स का एक कारण बनेंगे। अगला सवाल मेरा संदीप जी आपको ये है कि क्या पंजाब गवर्नमेंट का कोई फ्लड मैनेजमेंट प्लान है? अगर है तो क्या वो इम्प्लीमेंट हुआ है या नहीं हुआ सर? इसके बारे में आप क्या देखो जी, इसमें कोई इफ़ेक्टिव फ्लड मैनेजमेंट प्लान जो है वो अभी तक मुझे नहीं लगता, मेरी नॉलेज में है कि नहीं है। तो इसमें इनको गवर्नमेंट को टेकअप करना चाहिए। ये बड़ी अच्छी सजेशन है। कहीं ना कहीं एक्सपर्ट्स हायर करके वर्ल्ड ओवर बड़ी एजेंसीज हैं, इवन इंडिया में भी होंगी, तो कहीं ना कहीं एक्सपर्ट्स हैं, जैसे हमारे रिटायर्ड एक्सपर्ट्स हैं जो ड्रेनेज में रिटायर हुए हैं, उनको लेके एक इफ़ेक्टिव जो है उसका फ्लड मैनेजमेंट प्लान तैयार करना चाहिए। उनको फेज़ मैनर में डेडिकेटेड फंड्स देके इम्प्लीमेंट कराना चाहिए। एक बड़ी अच्छी सजेशन है। तो इसका मतलब देखो संदीप जी, 1988 से हम फ्लड्स की मार झेल रहे हैं, 2025 आ गया, और जैसे आपने शुरू में कहा कि हम कुछ समय के लिए याद रखते हैं फिर भूल जाते हैं, तो फ्लड मैनेजमेंट प्लान की तरफ सरकार को बड़ी गंभीरता से सोचना चाहिए और उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। एक जो आपकी ये सजेशन कि जो इतने बुद्धिजीवी जिन्होंने इतने साल यहाँ काम किया वो उनकी भी सर्विसेज अवेल कर लेनी चाहिए, क्योंकि जो पंजाब में इन्होंने सर्विस करी, पंजाब में रहते हैं, वो पंजाब के बारे में ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं, वो अपने सुझाव दे सकते हैं सर। एक जो संदीप जी, ये जो जगह जगह हमने देखा है कि जी बंद टूट रहे हैं, और क्या ये बंद को, अब मैंने ये भी पढ़ा है कि कुछ लोग लोकल लेवल पे अपनी ट्रालियां लगा के रेता डाल रहे हैं, मिट्टी डाल रहे हैं, कार सेवा कर रहे हैं, कुछ डिप्टी कमिश्नर उनसे काम करवा रहे हैं। तो इनको क्या कोई साइंटिफिक वे से स्ट्रेंथन करना चाहिए या इसी तरह से जैसे ये सिस्टम चल रहा है, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, यू बीइंग एन इंजीनियर सर? इसमें जो है हमारा जो डिज़ाइन ऑफिस है वो कॉम्पिटेंट इनफ है, लेकिन उनको इनपुट देनी पड़ेगी। जैसे हमने फ्लड प्लेन्स की बात की, तो फ्लड प्लेन्स जो जहाँ पर अब फ्लडिंग हुई है उसकी मैपिंग होनी चाहिए, पूरा डिस्चार्ज कैलकुलेशन होनी चाहिए, क्योंकि अगर डिस्चार्ज सही कैलकुलेट नहीं होगा तो कहीं ना कहीं हमारे तूसीबंद फेल होंगे। इसी के साथ जुड़ता हुआ एक सर मेरा और सवाल है जी, एक मैंने इंटरव्यू में ये भी सुना था कि वो आप थोड़ा सा बताइए, ये कहते हैं कि जब फ्लड्स आते हैं तो हमारी जो कनाल्स होती हैं उनके गेट बंद कर दिए जाते हैं। तो लोग कहते हैं कि जी अगर उनके गेट खोल दिए जाएं हो सकता है कि उसका असर दरियाओं के साथ कम हो। इसके बारे में टेक्निकली आप क्या बताना चाहते हो सर? क्यों, क्या वो बंद किए जाते हैं? अगर किए जाते हैं तो क्यों किए जाते हैं सर? ये जो जब फ्लड आता है तो एक हमारा एक रूटीन प्रोसीजर है, हम कैनाल्स के हेड रेगुलेटर बंद रखते हैं। उसका मेजर रीज़न है क्योंकि जो रिवर फ्लो होता है वो हैवी सिल्ट कैरी करता है, तो कहीं ना कहीं वो हमारे कैनाल्स में चली जाती है और डिपॉजिट होती है। फिर आगे जब हमारा पैडी सीज़न आएगा तो उसमें पानी नहीं देंगे तो बड़ा ह्यू एंड क्राई मचेगा। तो उसके लिए उसके गेट्स को कंट्रोल रखा जाता है। कई बार बड़े हैवी ट्रीज़ जो हैं उसके साथ फ्लो होते हैं और हमारे हेड रेगुलेटर को, अगर हम फ्लो चल रहा है तो वहाँ उसको डैमेज करते हैं। अगर हेड वर्क्स में रुक जाएँ तो वो डिज़ाइंड होता है उसकी कैपेसिटी को लेने के लिए। हमारे जो हेड रेगुलेटर रहते हैं दे आर नॉट डिज़ाइन टू टेक दैट हैवी लोड। अगर कोई ट्री वहाँ फंस जाता है तो हमारा हेड रेगुलेटर फेल हो जाएगा, तो वो उसको 1 साल लग जाएगा बनाने में। 1 साल में पानी नहीं दे पाएंगे तो फिर क्या करेंगे? तो इसका मतलब ये कोई ऐसी बात नहीं है कि इस बार ये स्ट्रेटजी नहीं, ये तो एक आपका रिटर्न डाउन जहाँ
एक स्टडी होने के बाद आपने ये एक प्रिंसिपल इरिगेशन डिपार्टमेंट ने, वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट ने बनाया हुआ है कि ये सिल्ट आती है इसलिए कनाल के गेट्स बंद कर दिए जाते हैं। और वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अगर कनाल के गेट्स बंद नहीं करोगे सिल्ट चली जाएगी, सिल्ट निकालने में कितनी देर लगेगी और इमीडिएटली कनाल से इवन के ड्रिंकिंग वाटर भी आता है, तो वो बहुत बड़ी एक समस्या हो सकती है। तो ये काफ़ी आपने मेरे मन का जो वहम था, जहाँ और लोगों को भी सवाल था, ये क्लियर किया कि यस ये गेट बंद किए जाते हैं और क्यों बंद किए जाते हैं। एक अगला सवाल संदीप जी, देखो ये डिजिटल एआई उसका ज़माना चल रहा है। इवन के जब ये हमारा पाकिस्तान के साथ कुछ इशू हुआ था, हमारे मोबाइल के ऊपर वार्निंग के सायरन बजते थे, क्या कोई ऐसा अर्ली वार्निंग का मैनेजमेंट और लोगों को मोबाइल के ऊपर इंटीमेशन चली जाए, ऐसा कोई सिस्टम है? अगर नहीं है तो आपके क्या सुझाव हैं सर? जो मैंने पहले बात की है, जो रियल टाइम डाटा शेयरिंग का एक प्लेटफॉर्म हर डैम पे होना चाहिए। ठीक है, चंडीगढ़ में बीबीएमबी का है, वहाँ हमारे सारे डैम्स के ऊपर इनका कंट्रोल होना चाहिए। उसमें ये जो आपने बड़ी अच्छी सजेशन दी, उसमें हमें सभी जो पब्लिक है जो इमीडिएटली अफेक्टेड है, जो हमारे डाउनस्ट्रीम पे डैम्स के, तो उनके जो नंबर्स हैं वो अवेलेबल होते हैं इनके जो टेलीकॉम वालों के पास, तो वहाँ से लेकर उनका एक कनेक्ट रखना चाहिए। और डेफिनेटली जब वहाँ से हम पानी छोड़ते हैं तो एक अलर्ट जानी चाहिए, क्योंकि अलर्ट चली जाएगी तो पानी तो अपना टाइम लगता है ट्रैवल करने में, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को इवैक्यूएट कर सकते हैं और उससे वो अपनी, जैसे रात को अगर पानी छोड़ते हैं तो अनफॉर्चुनेटली सोए इंसान कितनी डेथ्स हो जाती हैं, और हुई भी हैं, मोर देन 40 डेथ्स हुई हैं। अभी तो देखो हर आदमी के पास मोबाइल है जी। मेरे को ये मोबाइल वाला सिस्टम अच्छा लगा। मैं कुछ दिन पहले किसी ऑस्ट्रेलिया में किसी आदमी से बात कर रहा था, तो उसने कहा कि सर हमारे तो इस तरह का सिस्टम है, मोबाइल के ऊपर ऑटोमेटिकली वो सायरन बज जाता है। एक जो अभी हमने फ्लड मैनेजमेंट प्लान की बात करी, एक पंजाब जो है इरिगेशन के मामले में, पंजाब और उत्तर प्रदेश इन्होंने बड़ी लीड ली थी और बहुत अच्छा इनका सिस्टम था। बट समय के साथ इस सिस्टम में काफ़ी डिकेज हुए हैं। तो आप भी इतने साल इरिगेशन में रहे, आप के विचार के अनुसार क्या क्या डिकेज हुए हैं, और साथ ही साथ ये भी बता दीजिए कि उस डिकेज को अब जो समय निकल गया जी, आगे सरकार को जहाँ पॉलिसी मेकर्स को क्या डिसीजन लेने चाहिए, भरपाई उसकी किस तरीके से करी जा सकती है। मेरा स्पेसिफिक सवाल जो इरिगेशन जिसको आप वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट कहते हो, उसमें जो डिके हुए हैं उसमें इंस्टीट्यूशनल इम्प्रूवमेंट्स वगैरह के कैसे हो सकती है? इसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। जैसे हमारा 88 बैच था जी, इससे पहले एक 1982 बैच की रिक्रूटमेंट हुई थी, और अनफॉर्चुनेटली 1988 के बाद गवर्नमेंट ने 15-20 साल कोई रिक्रूटमेंट आपको मैं रोक रहा हूँ, इसके बाद 82 के बाद 88 में रिक्रूटमेंट हुई। हाँ, जो हमारी हुई है। अच्छा, 88 के बाद फिर उसके बाद 15 साल कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई। हमारे चीफ इंजीनियर लिखते रहे हैं। ठीक है, ओवर स्टाफिंग का इशू ऑल ओवर पंजाब था। उस इशू में हमारे भी कोई इवन बड़ी बार रिक्वेस्ट की कि 15 जो हैं एक्शन एसडीओज टी, जो टेम्परेरी इंजीनियर कहते हैं एसडीओज, उनको रिक्रूट किया जाए। कहीं ना कहीं वो हमारी बात नहीं मानी गई। अब क्या हुआ, जब हमने 1980 में ज्वाइन किया तो मेरी लकीली ड्यूटी डैम पर लग गई। तो मैंने जो वहाँ से सीखा, मुझे तो बुक्स में कभी पढ़ाया ही नहीं गया, और जो मैं सीख पाया उसमें जो हमारे 90-80 बैच के 70% इंजीनियर्स को मालूम ही नहीं डैम इंजीनियरिंग क्या है। तो ये कहीं ना कहीं गैप रह गया, जो 15 साल का गैप रह गया। तो जो न्यू कमर्स हैं बच्चे, वो अब इतना तो कुछ सीख नहीं पाए। और मैं एक और भी सरकार को इस प्लेटफॉर्म से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर उनसे कोई गलती होती है तो उनका कसूर ना निकाला जाए। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि उनको कोई एक्सपर्टाइज ही पास नहीं हुई, उनके पास कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है कैसे डिसीजन लिया जाए। तो कहीं ना कहीं हमें उनको एजुकेट करने की ज़रूरत है, उनको ट्रेनिंग्स देने की ज़रूरत है। उसमें हमारे जो चीफ इंजीनियर रिटायर्ड हैं, बहुत चीफ इंजीनियर्स हैं, उनको कांटेक्ट करके उनको कोई ना कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम, जहाँ किसी कंसल्टेंट से, जैसे आप भी बड़ा अच्छा काम करते हो इस लाइन में, तो कोई ना कोई ऐसे कनेक्ट करके कहीं ना कहीं ट्रेनिंग प्रोग्राम लिखे जाने चाहिए, ताकि इनकी जो मेंटरिंग हो सके, इनका जो अपग्रेड हो सके, और ये कहीं ना कहीं अपना डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा इनके ऊपर कॉन्फिडेंस आ सके। अभी जो प्रेजेंट सेक्रेटरीज हैं, मुझे उनसे रिक्वेस्ट है, वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ा अच्छे उन्होंने जो
वो ऑनेस्ट भी हैं और उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, बहुत जो हेड ऑफ द हेड में जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है बड़ा अच्छा उन्होंने मैनेज किया है। तो कहीं ना कहीं हमारे इंजीनियर्स को बूस्ट अप करने की ज़रूरत है ताकि जो उनका कॉन्फिडेंस बिल्ट हो सके। एजुकेट करेंगे तो वो कॉन्फिडेंस आएगा और कोई ना कोई आगे से ये हमारे जो फ्लड से हम बच सकें। बिल्कुल ठीक है संदीप जी। जो पुनिशमेंट, मेरा ख्याल अल्टीमेटली पुनिशमेंट कोई हल नहीं होता। जैसे आपने अभी बात कही, मैं एक बार हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के ऑफिस में गया, उनके एक चीफ इंजीनियर थे। उन्होंने ये कहा कि ये हमारी विजिलेंस की टीम जाती है, वो सैंपल टेस्ट करती है, सैंपल फेल हो गया जी, इसको सस्पेंड कर दो। देन उसने कहा यार रूट कॉज ढूंढो। जब उन्होंने अपने सारे इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, सब डिवीजन इंजीनियर को बुला के पूछा, उनको काफ़ी सारी बेसिक बातें ही नहीं पता थी क्योंकि फील्ड में किसी ने उनको बताया नहीं है। उन्होंने कहा जी पहले इनको एजुकेट करो, एजुकेट करके फिर अगर गलती करते हैं तब एक्शन लेना पड़ता है। अगर उनको पता ही नहीं है, ठीक है उनका डिग्री एक डिप्लोमा है, तो ये आपका बहुत अच्छा सुझाव है जिसके ऊपर मेरी भी रिक्वेस्ट है कि सरकारों को काम करना चाहिए। इसमें मैं एक और आपकी बात में ऐड करना चाहूँगा जी जी। क्योंकि जो हमारा हाइड्रोलॉजी होती है ये कोई डिफाइंड सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है। ये एक्चुअल बेस पे बिहेवियर पे इसका डिसाइड किया जाता है भी कौन सा डिज़ाइन चाहिए। जैसे स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग है, इसमें हमारा डिफाइंड कॉन्सेप्ट है जी। हमने कोई बिल्डिंग बनानी है तो उसमें हमारा डिफाइंड कॉन्सेप्ट है, इसमें ऐसे सरिया डलेगा, ऐसे डिज़ाइन होगा। पर इसमें जो है हमें गवर्नमेंट को इनकरेज करना चाहिए इंजीनियर्स को इनोवेशंस के लिए, तभी तो कुछ आगे बढ़ पाएंगे। इनोवेशन करेंगे, अगर हम फेल भी होते हैं तो उसमें क्वेश्चन मार्क नहीं आना चाहिए। ये इस पे मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। हाईवेज़ में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट उन्होंने बाकायदा एक सेल बनाया है न्यू टेक्नोलॉजीज़ का, और उन्होंने उसमें प्रोविज़न भी किए हैं कि आप सैंपल बना लीजिए, अगर वो फेल हो जाता है तो सरकार उसको किस तरह से करेगी, उसमें कार्रवाई नहीं होगी। तो ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है। अब मैं सर आपसे सवाल पूछ रहा था, कोई एनी वन ट्रांसफॉर्मेशन पॉलिसी, अगर आपको ट्रांसफॉर्मेटिव पॉलिसी के बारे में पूछा जाए तो क्या सुझाव दोगे कि क्या ट्रांसफॉर्मेटिव पॉलिसी होनी चाहिए जिससे ये इस तरह के हालात जो फ्लड्स आते हैं ये रुक जाएं या कम हो जाएं? इसमें मैं 3 सुझाव देना चाहूँगा। एक तो मैंने जो आर्टिकल में लिखा है कि इसमें जो रंजीत सागर डैम है, जो इसकी कैपेसिटी बहुत कम है लेकिन पीक फ्लो बहुत ज़्यादा है, तो अब इंस्टेंट फ्लोज भी होते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं जो हमारी रूल कर्व है उसमें अगर रिव्यू कर लिया जाए, एक्सपर्ट्स बैठा के, चाहे रुड़की से ले लें, कहीं से भी ले लें, उनसे रिव्यू कर लें कि अगर इसके लेवल को हम डाउन रख सकें। जैसे 20 तारीख को इन्होंने 523 लेवल था जी, 524 के करीब लेवल था, तो उनका लेवल तो एज पर रूल कर्व था, और इन्होंने जो फ्लोज आए हैं उनको प्रॉपरली मैनेज भी किया। कहीं ना कहीं गलती होती है, वो उसको हम इन फ्यूचर उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार को इसमें कोई ना कोई एक्सपर्ट्स बढ़ाकर इसमें अगर पॉलिसी में कोई चेंज करने की ज़रूरत है तो उसको चेंज करें। नंबर 2, जो इंक्रोचमेंट्स हो रही हैं पब्लिक की, अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है भी जो रिवर फ्लड प्लेन्स में जो अपना घर बनाता है वो गरीब इंसान होता है। जो अमीर हैं वो तो अपना प्राइम लोकेशन पे लैंड लेते हैं, तो जो सबसे सस्ती लैंड है फ्लड प्लेन्स में मिलती है, तो कहीं ना कहीं वहाँ बिल्टअप हो रहा है। सरकार को एक पॉलिसी बनानी चाहिए जिसमें फ्लड प्लेन जो मैपिंग करके जो मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वहाँ से उनको रिहेबिलिटेट करना चाहिए और प्रॉपर रिहेबिलिटेट करें। ये नहीं भी उनको मार देना है, वो फ्लड से तो मरेंगे, रिहेबिलिटेट करके भी मारना नहीं है, उनको प्रॉपर कंपनसेशन दे और उसकी बजट एलोकेशन करे। और जो 3rd पॉइंट है जी, जरा गवर्नमेंट नूं मैं एक सुझाव ही देना चाहांगा कि गवर्नमेंट की जी पॉलिसी है फंड्स रिलीज़ करन दी, वो जनरली फंड्स रिलीज़ किए जाते हैं आफ्टर दी पासिंग ऑफ द बजट। अब बजट तो अप्रैल में मेरा ख्याल जाके अप्रैल में अप्रूव होता है जी, और उसकी कापी अप्रैल मई में आती है। उसके बाद जो प्रोविजंस होती हैं वो प्रोविजंस के बेस पे हमारे इंजीनियर्स को कोई पावर नहीं है काम शुरू करने की। जब तक वो बजट एलोकेट हो गया अप्रैल में, फिर प्रोविजंस होगी, तो इसमें फिर मई जून आ जाती है इसमें जी। पुराना सिस्टम था सर, जब बजट एलोकेट हो जाता था, फॉर एग्जांपल फ्लड मैनेजमेंट के लिए गवर्नमेंट ने 200 करोड़ का बजट एलोकेट कर दिया अप्रैल में, फॉर एग्जांपल। तो उसमें जो पहला सिस्टम चला रहा था उसको कहीं ना कहीं पिछले 10-12 साल पहले इसको डिस्पेंस कर दिया। इन्होंने एक नई पॉलिसी ले आए कि हम बजट एलोकेशन डजंट मीन्स you can start the work. You have to apply for the release of the funds. You have to first get the project sanctioned. You have to first apply for the LOC. Then the case will move from SC level to chief engineer
टू सेक्रेटरी टू प्लानिंग टू एफडी डिपार्टमेंट। नो डाउट इन्होंने ऑनलाइन सिस्टम कर लिया है। अब क्या होता है, अब बजट प्रोविजंस हो गई है तो वो उसमें तो फुल जस्टिफिकेशन हो जाती है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑब्जेक्शन लगाता है, व्हाट इज़ द जस्टिफिकेशन फॉर दिस वर्क। तो इसमें कितना समय लग जाता है सर? इसमें सर अगर अब अप्रैल मई में अगर बजट पास होता है तो वो प्रोसेस अप्रूव करते करते हमारी जून जुलाई आ जाती है जी। फंड्स रिलीज होते हैं जुलाई में, तब तक मानसून आ गया जी। फिर तो जुलाई के बाद जैसे अभी भी हुआ 24-25 अगस्त को समझो एक तरह से फ्लड आने शुरू हो गए थे, एंड ऑफ अगस्त। तो जुलाई अगस्त में अगर कुछ काम कर भी लेंगे, वो भी काम किया हुआ बेकार हो जाएगा, तो वाश आउट हो जाता होगा। उसमें क्या करते हैं, कुछ ना कुछ नोशनल बजट प्रोविज़न होती है जो लास्ट बजट के हिसाब से गवर्नमेंट एक लेटर निकालती है कि इतने % आप स्पेंड कर सकते हो इन एंटीसिपेशन ऑफ द अप्रूवल ऑफ द बजट। पर कहीं ना कहीं वो जो LOC का इशू है, इसको एटलीस्ट फॉर ड्रेनेज वर्क्स इसको ख़त्म करना चाहिए। जब आपने बजट प्रोविज़न कर दिया है तो चीफ इंजीनियर को एम्पावर करो, उसने किस डिवीज़न में कितना इंपॉर्टेंट काम है उसको दे के वो इमीडिएट काम शुरू करा सके। और उसमें मेरी एक और जो मेजर इनको चेंज करने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को, कि जब हम प्लान करते हैं प्रोटेक्शन मेजर्स, चाहे वो डीसिल्टिंग ऑफ रिवर है, डीसिल्टिंग ऑफ ड्रेन्स है, जब प्रोटेक्शन ऑफ तुसी बंद है, तो उसमें ये जो मीटिंग्स हैं इमीडिएट आफ्टर दी फिनिशिंग ऑफ द मानसून, अब अक्टूबर में इमीडिएट वर्क्स आइडेंटिफाई होने चाहिए, उसमें इमीडिएटली केस मूव होना चाहिए, उसकी अप्रूवल होनी चाहिए और गवर्नमेंट इंश्योर करे, क्योंकि उस ईयर के बजट ऑलरेडी अप्रूव होता है, उसमें उसको डेडिकेटेड फंड रिलीज़ करे, ताकि जो इंजीनियर्स में कॉन्फिडेंस हो कि हम ये काम शुरू करेंगे तो ये पैसे का कोई इशू नहीं होगा। अब क्या हो रहा है, एक तो LOC रिलीज़ करते करते 2 महीने लग जाएंगे, उसके बाद टेंडर किए, प्रोसेस किया, काम एग्जीक्यूट किया, अब एक और चैनल बना दिया गवर्नमेंट ने। अभी आपने फंड्स जो ट्रेजरी में आपने बिल सबमिट किया तो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस हैं कि हमारी परमिशन के बिना कोई भी सिंगल पेमेंट रिलीज ना की जाए। अब आपने बजट प्रोविज़न कर दिया है, उस बजट प्रोविज़न के अगेंस्ट अगर ड्रेनेज वर्क्स के रिगार्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, उसका ट्रेजरी के पास आ रहा है बिल, तो इमीडिएटली रिलीज़ होना चाहिए। अब प्रोसेस क्या है, काम हो जाते हैं। अब वो इंजीनियर के साथ लड़ता है कॉन्ट्रैक्टर आके, तो इंजीनियर बेचारा सोचता है कि मैंने काम क्यों करवाया, मैं तो ट्रैप हो गया। कहीं ना कहीं कोर्ट केस होते हैं, वो कोर्ट केस में भागता है, फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट लिस्ट बनाता है और प्रायोरिटी पे फंड्स रिलीज करता है। अल्टीमेटली इस सभी बातों को सर संदीप जी भुगत तो जनता रही है। फिर ये भुगत जनता रही है। संदीप जी जाते जाते मेरा एक आखिरी सवाल आपको, आप सिटीजन्स को और प्लानर्स को, पॉलिसी मेकर्स को, चाहे वो सरकार है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है, जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे स्पेसिफिकली रिगार्डिंग ये जो फ्लड्स पंजाब में आते हैं, और इसके बारे में आप क्या संदेश देना चाहते हो सिटीजन्स को, प्लानर्स को और पॉलिसी मेकर्स को? देखो, सिटीजन्स को जो फ्लड प्लेन्स में सेटल हैं उनको गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। जो आइडेंटिफाई गवर्नमेंट करती है वो अपनी रिहेबिलिटेशन के लिए कोऑपरेट करें, क्योंकि कल को उनका ही इफेक्ट होगा, क्योंकि फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है। अभी तो डिस्चार्ज 3 लाख आया है जी, अभी 1 in 100 वाला फ्लड तो आया नहीं। जब वो 8 से 9 लाख का डिस्चार्ज आएगा तो आप इमेजिन कर लें कितनी डेवस्टेशन हो सकती है। ये 20 साल बाद भी आ सकता है, 25 साल बाद भी आ सकता है, इमीडिएटली भी आ सकता है। नोबडी कैन प्रेडिक्ट। तो ये सिटीजन्स के लिए हो गया भी, वो कोऑपरेट करें और इमीडिएटली वहाँ से रिहेबिलिटेट हो जाएं। और एक सिटीजन्स के लिए एक और भी बात है कि एक पैनिक ना क्रिएट करें मीडिया में, जो अपने व्यूज़ दे देते हैं सारे एक्सपर्ट्स या कोई भी, तो एटलीस्ट आप थॉरो उसको एग्जामिन तो करें। बिल्कुल। अगर आप डैम पर रहे ही नहीं हैं, डीपली आपको स्टडी का मालूम नहीं है, तो आप इतनी स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पब्लिक में अनरेस्ट होता है और पब्लिक भी बड़े अनकंट्रोल्ड इन्फॉर्मेशन देती है, वायरल हो जाते हैं मैसेज, तो पैनिक क्रिएट करती हैं। तो गवर्नमेंट को कोई ना कोई, जैसे आपने कहा, तो साइरन सिस्टम ऑपरेट होना चाहिए, सिंगल प्लेटफॉर्म की इन्फॉर्मेशन पे पब्लिक को रिलाई करना चाहिए। देन सर व्हाट अबाउट द प्लानर्स के लिए इनको बैठकर, एक तो उनको जो है जो लथार्जिक नेक की अप्रोच है, जब प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं लेते, उसको उनको आगे बढ़ना चाहिए। और जो हमारे जो डैमेजेस हुए हैं इनका सारा स्टडी करके, इनके लेसन लेके आगे इनको अच्छे वर्क जो प्रपोज करने चाहिए, जिससे हमारे जनता सो फ्लड से बच सके। एंड व्हाट अबाउट द सर पॉलिसी मेकर विच इंक्लूड सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट? डेफिनेटली जी, सेंटर का भी जो उज रिवर है, उज रिवर को प्रायोरिटी पे लेके अप्रूव करे,
और जो एक और जो मैं सजेशन देना चाहूँगा, क्योंकि जो हमारे डैम्स हैं उनका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ इरिगेशन एंड देन सेकंड इज़ फ्लड मिटिगेशन एंड पावर जनरेशन इज़ बाई प्रोडक्ट। बट अनफॉर्चुनेटली जैसे BBMB है वो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर है। अब क्या हुआ, उन्होंने अपनी गाइडलाइन से चेयरमैन लगा ले। चेयरमैन की कॉम्पिटेंसी पे मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा। अब चेयरमैन का मैंने एक्सपीरियंस देखा था जो नेट पे अवेलेबल है कि वो चेयरमैन जो हैं चीफ इंजीनियर रहे हैं सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी में, CEA हाइडल प्रोजेक्ट्स में। तो उनका जो जब हम सिविल इंजीनियर हम बड़ा सोच सकते हैं भी उनका कितना एक्सपीरियंस होगा रिगार्डिंग दिस फ्लड एंड इरिगेशन। और ये BBMB का कंट्रोल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इमीडिएटली जो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज का उसके अंडर करना चाहिए, ताकि वो अपने हिसाब से चेयरमैन अपॉइंट करें। अब फॉर एग्जांपल अब जिस ऑफिसर को कन्वर्सेंट इन जियोलॉजी के साथ पंजाब की, वो कैसे उसके साथ इंसाफ कर पाएगा। और इसमें मैं ये नहीं कहता पंजाब से इंजीनियर लगाओ, अगर पंजाब के इंजीनियर लगा सकते हो बड़ी अच्छी बात है, अगर कॉम्पिटेंट है वहाँ से लगाओ, वहाँ से लगा लो। अगर आप सेंटर का लगाना चाहते हो तो सेंटर वाटर कमीशन से उनके चीफ इंजीनियर हमारे पंजाब चंडीगढ़ में बैठते हैं, वो पंजाब का बहुत सर्वे करते हैं और उनका वेल कन्वर्सेंट होते हैं। उनमें से क्यों नहीं चेयरमैन लगाया जा सकता जो रिटायरीज़ हैं। अब क्या है, इन सर्विस से लगाते हैं, वो इन सर्विस से तो इतनी उसका एक्सपोजर नहीं होता। तो कहीं ना कहीं ये जो BBMB का कंट्रोल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स को देना चाहिए, और जो चीफ इंजीनियर कहीं से भी लगाएं जो रिटायर्ड हो चाहे चेयरमैन लगे, उसको पूरा नॉलेज होनी चाहिए पंजाब के बारे में। क्योंकि फ्लड से अगर सेव करना है, इस बार तो फ्लड नहीं आए बाखड़ा और ब्यास में, उन्होंने मैनेज कर लिया। अगर 98 जैसे फ्लड आ गए, जो 1 in 100 ईयर वाला फ्लड आया, तो ये BBMB कुछ नहीं कर पाएगी अनलेस अनटिल अगर चीफ इंजीनियर होगा तो प्रॉपरली मैनेज तो कर पाएगा। तो मेरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये सजेशन है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को ये सजेशन है कि आप रंजीत सागर डैम पे जो मैंने मानसून पीरियड की बात की है उसमें कंट्रोल जो है इरिगेशन को दें, ताकि ये अगर ये हम पावर जनरेट करते रहते तो कहीं ना कहीं हम इसको कंट्रोल कर सकते थे। तो आज के जो एपिसोड में हमने एक पार्ट पहले बात करी डैम्स के बारे में, दूसरे में हमने कनाल्स के बारे में बात करी, और साथ साथ ही हम क्या मिटिगेशन मेजर्स होने चाहिए उसको हमने कोशिश करी है कि ब्रीफली उसको टच करके किया जाए। हो सकता है इसके अंदर काफ़ी सारी अभी और विस्तार से बातों की ज़रूरत हो, या कोई त्रुटियां भी रह सकती हैं। और संदीप सलूजा जी ने मेरे को बताया था कि ये मैं जितनी बातें कर रहा हूँ ये इसमें मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस प्लस जो गवर्नमेंट में मैंने काम किया, प्लस इन्होंने जो डाटा या मैसेजेस या न्यूज़पेपर्स पढ़े उसके बेस के ऊपर इन्होंने अपने विचार दिए। तो मैं संदीप सलूजा जी आपका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ, आपने समय निकाला और वाकया ही बेवाक होके ये बातें करी। और कैंट टास्क जो है स्पेसिफिकली आप जैसे कैंट लोगों के लिए मैंने बनाया है, और मेरे को वो कैंट आदमी आज मिला जिसने पंजाब के फ्लड्स के बारे बात करी। दोस्तों, बाढ़ को टाला नहीं जा सकता, लेकिन उसके जो प्रभाव पड़ते हैं उनको कम किया जा सकता है। आज की बातचीत में संदीप सलूजा जी ने बेवाक होकर ये सारी बातें हमें बताई। हम संदीप सलूजा जी के ग्रेटफुल हैं, धन्यवादी हैं कि उन्होंने पहली बार समय निकाला, फिर इतनी बेवाक होके अपने मन की बात, अपने जीवन के तजर्बे की बात लोगों के सामने रखी। और हमारे घेंट टॉक्स में हमारा पर्पस भी यही होता है कि इस तरह के घेंट लोग आएँ जो निर्भीक होके अपनी बात लोगों के सामने, जनता के सामने रख सकें। आपको ये एपिसोड कैसा लगा ये आप देखिए, देखकर हमें बताइए। और अगर आपको अच्छा लगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास आती रहे। और अगले एपिसोड के लिए जल्दी हम आपके सामने आएंगे। जय हिंद।